لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں ہیں جو ہیں ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے بھئی؟ اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے. یہ آج کا آخری ٹاپک ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا اور وہابیوں کا ایک مناظرہ ہوا لندن میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا مناظرہ کیوں نہیں کہا. کاش ایسا ہوتا کہ میں کہہ سکتا کہ قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمان تھے. یہ نہیں کہ میں ان کو کافر سمجھ رہا ہوں، مسلمان ہی تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، سادہ والے، وہ وہابی تھے. ایک ان میں اہل حدیث تھا، ایک دیوبندی تھا. اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو لگ رہا تھا کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. جب قادیانیوں نے ان کے سامنے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے رکھنے شروع کیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب آپ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی حوالہ پیش کریں، ہمیں کسی عالم کی کوئی بات پیش نہ کریں. یہ بات تو ہم کہتے تھے بھائی، آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہیں جن کو اپنے بزرگ بابوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ویسے تو معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں اولاد کے پیچھے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہو جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو، اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا رد کر سکو. کہتے نہیں اس کو چھوڑے. یہ تو بالکل اس طریقے پر ہے. یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی مناظرے میں قادیانی ان سے یہ کہتے کہ اگر ہمارے دجال نے دعوے نبوت کیا ہے تو مسلمہ کذاب نے بھی تو کیا تھا، تو کیا اس کے جواب میں ان وہابیوں نے یہ کہنا تھا کہ جی مسلمہ کذاب کو چھوڑیں، آپ ہم سے اپنے دجال کی بات کریں؟ انہوں نے فوراً کہنا تھا نہیں مسلمہ کذاب کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، مسلمہ کذاب سے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہوا ہے. یہی کہنا تھا نا. یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑیں، آپ بات کریں اپنے دجال کی. یہ پھکی ہے، یاد رکھنا. وہابیوں تمہیں میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. مسلمہ کذاب کی اگر مثال پیش کرتے قادیانی تو تم نے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ مسلمہ کذاب سے متعلق یہ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے قتال کیا. وہاں تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑو، غلام احمد قادیانی کی بات کرو. لیکن جب چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی بات آئی ہے تمہارے پاس جواب نہیں تھا. وہ جواب صرف انجینئر کے پاس ہے جو اینٹی قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کام کرنے والا ہے. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے. ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ڈالا ہوگا، لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں. تم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی کام نہیں کر رہا. تمہارے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور جب اس معاملے میں ذلیل ہوئے تو آج اپنا زخم اس حوالے سے چاٹ رہے ہیں. جگہ جگہ مختلف پوڈ کاسٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قادیانی کو تیاری انجینئر صاحب نے کروائی بھی تھی، کیونکہ وہ ریفرنسز جو پیش کر رہا تھا وہ وہی والے ریفرنسز ہیں جو انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں. تو بھائی بڑا اچھا موقع تھا، بقول تمہارے تم قادیانی کو بھی ہرا دیتے، انجینئر کو بھی ہرا دیتے، اور یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے بزرگوں نے کفر کیا، جان چھڑوا لیتے. الٹا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا کہ تمہارے بابوں نے کام ڈالا ہے، لہذا آندہ کے بعد نہ تمہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں ختم نبوت کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، چشتی دجال تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بقول تمہارے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تھانوی دجال تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بقول تمہارے. یہ بقول تمہارے اس لیے کہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں چشتی دجال، تھانوی دجال. تو میں نے ان سے بھی فون پہ بھی بات کی تھی کہ مولانا تمہارے بزرگوں کو تمہارے یہ چمچے جو ہے نا باندھ کے مروا رہے ہیں، یہ کہہ دینا کہ یہ کفر ہے تو میں ان کو کبھی بھی آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا. میری زبان کے نیزے کی نوک پہ یہ آتے اس لیے کہ یہ دفاع کرتے ہیں. انہوں نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے. وہ پنڈی کا مفتی 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا معرفت کی بات کہہ کے، شتیحات کے نام پہ. حالانکہ تصوف میں جو ڈکوسلا ان کا چل رہا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں انا الحق. منصور نے کہا تھا وہ کافر نہیں ہوا. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، کیونکہ محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. تو چشتی رسول اللہ یہ کس کی نبوت کے اوپر حملہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معرفت کی بات ہے، شتہیات ہیں. شتیحات کی انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدل لی.
शर्म भी नहीं आई इनको। और आज ये कह रहे हैं नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे जमाने में होते तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने पढ़वाया, और अगर वो कहते पढ़वाया तो हम उन्हें काफिर ही कहते। अंदाजा करें ये बात तुमने 2009 के मुनाजरे में क्यों नहीं की है? उस वक्त नहीं की। उस वक्त इन्होंने कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग भी दिफा करते हैं शतियात के नाम पे, खबरदार जी हार, बुजुर्गों के बारे में कुछ ना कहना। आज मेरे डर की वजह से किताबें बदल गई हैं। ये किताबें अब बदली हैं आके, मेरे डर की वजह से 2009 तक तो नहीं बदली हुई थी। तो अल्लाह से डर जाओ, ये तुम्हारे करतूत हैं। मेरे ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हो कि जी इंजीनियर जो है वो कादियानियों को तैयारी करवाता है, बल्कि एक तो साहबी कह रहा है जी जेलम अकेडमी से इन्होंने तरबियत हासिल की हुई है। अच्छा, जेलम अकेडमी से तरबियत हासिल की हुई है। अल्लाह के बंदे, आल इमदाद रिसाले में थानवी रसूलुल्लाह वाला जो वाकया है, जो तुम्हारे मौलवी फ्रॉड करके कहते हैं वो ख्वाब था ना, उसमें मौजूद है कि उसका मुरीद ख्वाब में भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, नाऊज़ु बिल्लाह। और वो कह रहा है फिर मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं, ख्वाब प्लस बेदारी। और खत लिखता है तो उसका पीर अशरफ अली थानवी कहता है कि इस वाकये में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तुमने अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ा है। उसको भी यही है, उसने भी नहीं कहा कि ख्वाब में तसल्ली है, उसने कहा वाकये में तसल्ली है। उसे भी पता था ख्वाब प्लस बेदारी है। आला हजरत उस वक्त जिंदा थे, उन तक ये वाकया पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है फतावा रज़विया में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया इसी वाकये से मुताल्लिक कि ख्वाब प्लस बेदारी में थानवी रसूलुल्लाह कलमा अशरफ थानवी के मुरीद ने पढ़ाया है और थानवी साहब ने उसे एंडोर्स किया है, तो आला हजरत ने कहा ये तो खत्म नबूवत की मुनकर है। हाँ, आला हजरत बरेलवी ने, हाँ, जो आज तुम एक तस्बीह में परोए गए हो, आला हजरत बरेलवी ने कहा ये तो खत्म नबूवत के मुनकर है। इनसे क्या बैद है, इनका कासिम ननोतवी तो तहज़ीरुन नास में खत्म नबूवत का इनकार कर चुका है, इनसे क्या बैद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करेंगे। तो आला हजरत हैं जिन्होंने फतावा रज़विया में जो कि प्रिंट किया है बरेलवियों ने, उसमें आज से ऑलमोस्ट कोई 100 साल पहले यह फैसला कर दिया था कि थानवी रसूलुल्लाह खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारना है। तो ये इंजीनियर साहब ने कोई दरियाफ्त नहीं किया, ये मुझसे पहले ही इल्मी खिदमात हुई है। और मैं आपको बारहा कहता हूं कि मैं आपके उलमा की खिदमात से इस्तेफादा करके आप पे मुसल्लत हुआ हूं। ये कोई मेरी खुद से बनाई हुई चीजें नहीं है, ये मैंने आप लोगों के बुजुर्गों की तालीमात से सीखा है। बरेलवियों से ये सीखा कि देवबंदियों ने कहां कहां काम डाला है, देवबंदियों से सीखा कि बरेलवियों ने कहां का काम डाला है, अहले हदीस से सीखा इन दोनों ने कहां काम डाला है, शिया से सीखा कि इन सारों ने क्या काम डाला है, इनसे सीखा शिया ने क्या काम डाला है। और फिर मैंने अपनी अकल भी इस्तेमाल की कि इन सब ने कहां कहां काम डाला हुआ है। फिर मैंने काउंटर वेरीफाई किया और एक रज्ज के जरिए तुम सबको ले उड़ा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बार बार हर फोरम पे आके तुम ये बात कर रहे हो कि इंजीनियर साहब जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंजीनियर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बाबों के करतूत है जिसकी वजह से आज वो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और मुझे इल्जाम दे रहे हो और मेरी लाइफ को बार बार वनरेबल करते हो इस तरह करके। तो मैंने पीछे नहीं हटना इस तरीके से। मैं बार बार जब जब तुम मुझ पे ये इल्जाम लगाओगे मैं बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा, थानवी रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा और तुम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। आला हजरत गोल्डवी पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, जिनके बारे में इन्होंने क्लेम किया कि जी वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे टार्जन बन गए थे और उन्होंने कहा जी मेरा मुनाज़ा कर लो। लाहौर आके बैठ गए और ये तस्वीर का आधा रुख पेश करते हैं। लाहौर आकर वो बैठे थे अपने सारे मुरीदीन के साथ, जिस तरह के मुरीदीन आपने उस दिन समर अब्बास अत्तारी साहब के स्टेज पे देखे, और इन्हों चुके सुटो बाहर। इन्होंने तय किया हुआ था कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल आएगा तो हम उसे कत्ल करवा देंगे। मुनाज़रे तक तो बात ही नहीं जानी थी। ग्रेट ब्रिटेन ने उसको बता दिया कि भाई इधर ना आना, वो मार देंगे। तो वो कादियान में बैठा रहा और ये अकेले दौड़ के कहते हैं जी हम जीत गए। अच्छा तुम जीत गए थे तो तुम तो निगाहें मार के लोगों को जला के राख करते हो, तो लाहौर से तो कादियान इतनी दूर नहीं था, निगाह मार के तो जला के राख कर देते, नहीं कर सके। फिर असल बात जो बताने की है वो ये है कि वो पीर मेर अली शाह साहब जिन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है मार्फत के नाम पर, वो किस मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए थे कि वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ मुनाजरा करते? इसका जवाब दो। इसका जवाब ना उनके गद्दी पे बैठे हुए लोग दे सकते हैं, ना वो देवबंदी जो आज पीर मेर अली शाह साहब को रहीमहुल्लाह कहते हैं, ना वो दे सकते हैं, ना वहाबी दे सकते हैं। किसी के पास जवाब नहीं है। और फिर तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब जो 1944 में फौत हुए, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अड़िया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया और ऐसे अजीब तरीके से दिफा किया। आप जवाब देखें, वो कहते हैं इसमें मसला क्या था, वो तो खास लोगों में बैठे हुए थे ना, इससे वामुन्नास के तो अकीदे खराब नहीं होते। फिर कहते हैं कि देखें उन्होंने इम्तिहान के तौर पर कलमा पढ़ाया था ताकि मैं इसको मुरीद कर सकता हूं कि नहीं, यानी ये दिमाग बंद है या नहीं। अगर दिमाग बंद है तो फिर मैं इसे देवबंद में दाखिल कर सकता हूं। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने किया था। और तीसरी जो उन्होंने उसमें बात रखी वो इतनी खतरनाक है, जामिया तिरमिजी और सुनन नबी दाऊद की हदीस की तारीफ कर दी। वो कहते हैं सहाबा कराम भी तो इसलिए कहते थे, जब नबी इस्लाम ने एक सहाबी को मुज़दलिफा के मैदान में अनाउंसमेंट के लिए भेजा तो उन्होंने सहाबा कराम को कहा
इन्नी रसूल रसूलिल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह ताला के रसूल की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूं तुम्हारे पास। और फिर नबी इस्लाम का ऐलान सुनाया। तो उन्होंने कहा देखें, उस सहाबी ने भी तो कहा था ना, इन्नी रसूल रसूलिल्लाहि इलैकुम। तो चिश्ती रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का रसूल हूं। अंदाजा करें, उसमें उसने 2 बार रसूल का वर्ड नहीं बोला, डायरेक्ट कहा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह। और देखें, उससे पहले वो कह रहा है कि तुम कलमा क्या पढ़ते हो, तो वो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने कहा एक दफा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु चिश्ती रसूलुल्लाह। और फिर बाद में कहा नहीं, कलमा वही था जो मैंने पढ़वाया। यानी ये वो चीज है जो चिश्ती साहब के भी दिमाग में नहीं थी, जो थानवी साहब ने दिमाग किया। उनको ये तो नहीं कहना चाहिए था। अगर उन्होंने सही कलमा पढ़ाया था तो उनको चाहिए था वो ये बताते कि ये रसूल से मुराद मैं रसूल का रसूल ले रहा हूं। तो उन्होंने बाद में क्यों कहा कि नहीं, कलमा वही था। लेकिन गलती कहां की, तौबा नहीं करवाई। तौबा करवाते तो हम मानते कि उन्होंने रुजू किया। कहते नहीं, ये रुजू ही था। रुजू ऐसे नहीं होता, आपने तो हमें बताया हुआ है, कोई झूठी मूठी भी कादियानी लिख के चला जाए पासपोर्ट के ऊपर तो वो काफिर हो जाएगा जब तक कि एलानिया तौबा ना करे। तो एलानिया तौबा तो नहीं की, जब तौबा नहीं किया तो उनकी तो अपनी बैत टूट चुकी थी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा के। जब उनकी अपनी बैत ऊपर तक टूट गई तो वो आगे मुरीद कैसे कर सकते थे। इसमें मैंने कहा था चिश्ती चाचू, तेरी चाची गई, यानी तेरी अपनी बीवी फारिग हो गई, तेरा निकाह भी टूट गया बकौल इनके, क्योंकि ये तो वाकई को सही मानते हैं, तभी तो इन्होंने मुनाजरे लड़े। और आज जो है वो हमें दोस्त लगाते हैं, जी देखें इतने बड़े बड़े औलिया है उम्मत जो बकौल इनके औलिया हैं, उनके बारे में इंजीनियर साहब बात करते हैं। ये तो तुम बांध के मरवा रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे, ये तुम्हारा दावा है कि इन्होंने कहलवाया, हमने तो नहीं कहा कहीं पे। लेकिन चूंकि तुम उनके कस्टोडियन हो तो तुम बांध के मरवा रहे हो। किताबें तो तुमने प्रिंट की, मुनाजरे तुमने लड़े, हराम की कमाइयां तुमने खाई। तो ये किताबें अगर बदली होती तो थानवी साहब 8 से 100 साल पहले ऑलमोस्ट दिफा करके क्यों गए। इसका मतलब है किताबें नहीं बदली। तीसरे, तुम सबके ताया अबू आला हजरत बरेलवी साहब, उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया है, यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आज लोग कह रहे हैं कि जी सबा सनाबिल जो किताब है ना, इसमें चिश्तिया की किताबों से रेफरेंस लेकर, फवाइदुस सालिकीन से रेफरेंस लेकर इस वाक़े को बयान किया गया था। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में कहा है कि चिश्तिया की किताबों का कोई इतबार नहीं है, लिहाजा आला हजरत बरी हैं। हमने कहा था ना, रुको जरा, सब्र करो, आशा तुझे बताते हैं, ऐसा नहीं है। सबा सनाबिल जो किताब है उसमें एक चैप्टर है जिसमें मुरीद के पीर के साथ रिलेशनशिप का जिक्र किया गया है कि वो किस लेवल का होना चाहिए, ये टॉपिक बनाया गया। और उसके सबूत में आला हजरत के बुजुर्ग सबा सनाबिल में ये बताते हैं कि ये रिलेशनशिप होना चाहिए जैसा कि चिश्ती साहब के मुरीद का था, कि उन्होंने उसके कहने के ऊपर चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ दिया था। यानी वो पूरा वाकया लिख के उसमें से रिजल्ट निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सबा सनाबिल जब लिखी गई उस वक्त तक तो फवाइदुस सालिकीन कोई नहीं बदली हुई थी, वो उसका हवाला कोट कर रहे थे। आला हजरत मान भी ले तब भी आला हजरत के बुजुर्ग फारिग होते हैं, लेकिन यहां पे आला हजरत भी फारिग हो गए। उसकी वजह यह है कि अगर आला हजरत को पता था कि मेरे बुजुर्गों ने सबा सनाबिल में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, उसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया कि ये आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है, तो आला हजरत गए। और अगर उनको पता ही नहीं चला तो आला हजरत की बुजुर्गी भी गई, मुजद्दिदियत भी गई, कि वो ऐसी किताब रेफर करते रहे कि जिसमें ये कुछ लिखा हुआ था, कुफरियात लिखे हुए थे, खत्म नबूवत पे डाका मारा हुआ था। और तुम्हारा तो दावा है कि आला हजरत गौसे वक्त थे, पूरी कायनात को इस तरह देखते थे जिस तरह हथेली पे राई का दाना, और उनको ये नहीं पता चला कि सबा सनाबिल में ये लिखा हुआ है। तो आला हजरत भी फंसते हैं, क्योंकि फतावा रज़विया में उन्होंने तारीफ की है। सारे इनके बुजुर्ग फारिग होते हैं, आला हजरत भी फारिग हो गए। अल-मुतवफ़ा 1921 ईस्वी, थानवी साहब अल-मुतवफ़ा 1944 ईस्वी, और आला हजरत गोल्डवी साहब अल-मुतवफ़ा 1937 ईस्वी। ये तुमने अपने बुजुर्गों को फारिग करवाया है। लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से हमारा स्टांस अपनी जगह मौजूद है। इसके बगैर कभी भी तुम कादियानियों को हरा नहीं सकते, वरना हमेशा वो तुम्हें जलील करते रहेंगे, यानी कि करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, अब ये जलील होते हैं उनके हाथों, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं आता, गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं और मुझे कहते हैं कि ये उनको पढ़ाता है। और इसकी बजाय भाई मुझे भी फेल करो और मेरा मुकदमा मान लो कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है, थानवी रसूलुल्लाह कुफर है।